students, we understand about the variables, we understand about the uses of variables. Now we will discuss in this video expressions with variables, very important point. So really this is your chapter 11 NCERT class 6, no doubt. Let's we start how to express the variables. So expressions with variables in arithmetics we have come across expressions like 2 multiply. देखिए ये अर्थमेटिक्स ओनली नंबर के एक्सप्रेशन हैं ये 2 मल्टीप्लाई 10 देन प्लस 3 राइट. नेक्स्ट वेरी आपका एक्सप्रेशन है 3 मल्टीप्लाई बाय 100 देन प्लस देन 2 मल्टीप्लाई बाय 10 देन प्लस 4 एटसेट्रा. वी कैन एक्सप्रेस मैनी एक्सप्रेशंस इन अर्थमेटिक्स, मतलब नंबर्स के एक्सप्रेशंस, बट एक्सप्रेशंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल्स टू. राइट नाउ in fact we already have seen expressions with variables. हमने एक एक्सप्रेशन ये देखा था 2n मैथस्टिक वाला, 5m x plus 10 x minus 3 etc. So many expressions are there. We know that variables can take different values. जैसे मैंने बोला था they have no fixed values but they are numbers. That is why as in the case of numbers, operations of addition, subtraction, multiplication and division can be done on them. One important point must be noted regarding the expression containing variables. A number expression like 4 multiply 3 then plus 5 can be immediately evaluated as 4 multiply 3 plus 5. So 4 3s are 12. Board mass में आपने सीखा होगा. First we will simplify the bracket. So it is 12, no doubt. Then plus 5, it is 17. But an expression like 4x plus 3, which contain the variable x, अब देखिए इसमें इस expression में variable x आ गया कि नहीं, cannot be evaluated, right? Cannot be evaluated only if x is given some value in expression like 4x plus 5, right? So example लेते हैं. When you put x is equal to 3 in this expression, so 4x means 4 into 3, right? So 4 into 3, 12. Then plus 5, 12 plus 5, 17 as found above. So my dear students, in case of 3, when you put x, so it become 4x plus 5. But in 4x plus 5, when you put x is equal to 3, then you will get the same result 17. Understand? So let's we discuss some expressions now. Here are the expressions. First is y plus 5. How to write in statement this expression? So इस expression को statement में हम कैसे लिखेंगे? See, 5 is added to y. ये देखिए. How formed? Okay, so second is xt minus 7. How to write in words? 7 is subtracted from t. Very good. 10a. This expression written in the statement, a multiplied by 10 t. ये division वाला है. How to write? X. See, x is divided by 3. Minus 5q, very simple. Q multiplied by minus 5. So 3x plus 2. This is very important. इसमें दो पॉइंट एक साथ आपको एक्सप्रेस करने हैं इन वर्ड्स. फर्स्ट x मल्टीप्लाई बाई 3. तो देखिए 3x हो गया. अब अदर में क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है ना. देन क्या आ गया वर्ड यहाँ? देन 2 एडेड टू द प्रोडक्ट. तो जो x मल्टीप्लाई बाई 3 हुआ ये प्रोडक्ट हुआ और इसमें देन क्या ऐड कर दिया? 2. एक नेगेटिव ले लेते हैं 2y माइनस 5. तो पहले आप 2 और y का मल्टीप्लाई करिए. फर्स्ट y मल्टीप्लाइड बाई 2, देन सी 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट. किसका प्रोडक्ट? y और 2 का प्रोडक्ट. अंडरस्टैंड? सो दीज आर द एक्सप्रेशन एंड दीज आर द स्टेटमेंट. और अगर स्टेटमेंट दे दिया जाए और आपसे कहा जाए अब एक्सप्रेशन लिखिए, सो लेट्स सी सम एग्जांपल. 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z. वेरी सिंपल. फ्रॉम z, देखिए प्रीपोजिशन को. फ्रॉम z, z से कौन सब्ट्रैक्ट होगा? 12. देखिए z माइनस 12.
आ गया एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक. 25 एडेड टू आर, सो आर फर्स्ट आएगा, देन एडेड 25. P multiplied by 16, so it is 16P, 16 into P, ऐसा भी कर सकते हो. Y divided by 8, सिंपल है, Y upon 8. M multiplied by -9, इसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है. अरे भाई मल्टीप्लाइड है तो -9 का m में मल्टीप्लाई करो ना, तो -9m हो जाएगा. और बहुत से बच्चे 9 माइनस m लिखते हैं, m -9 लिखते हैं. अरे भाई मल्टीप्लाई को समझिए, मल्टीप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. सो अगेन y मल्टीप्लाई बाई 10, अब आ गया वर्ड then 7 इज एडेड टू द प्रोडक्ट. तो पहले y का 10 में मल्टीप्लाई करो, इट बिकम 10y. अब then के बाद क्या कह रहा है, ऐड करो. हाउ मच, 7, 10y plus 7. n multiplied by 2, first you multiply with n 2, so it become 2n. अब and लिखा उसने. 1 is subtracted from the product, जो 2 और n का प्रोडक्ट हुआ उसमें से आपने किसको सब्ट्रैक्ट किया, 1 को. so how to express the algebraic expression with a given statement, you can do easily. please अपने होमवर्क क्लास वर्क में ये दोनों एक्सप्रेशंस आप स्टेटमेंट से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से स्टेटमेंट की तरफ लाइक एंड सब्सक्राइब कंटिन्यू करते रहिएगा. क्यों, क्योंकि अभी और भी बहुत अच्छे वीडियो आने वाले हैं. बट एल्जेब्रा के लिए, इस चैप्टर के लिए मेरे 3 वीडियो सफिशिएंट हैं. किसी भी 6th क्लास के बच्चे को दिखा दीजिए, उससे कहिए क्लास वर्क में नोट कर लो और क्वेश्चंस अपने बेस पे बनाने की कोशिश करो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किसी रिफ्रेशर में, किसी गाइड में, किसी की में या गूगल में सर्च करने से मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है. इन कॉन्सेप्ट्स को लर्न करिए और सेल्फ ट्राई करिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, और उनमें से जो नहीं आते हैं वो अपने टीचर से डिस्कस करिए. सॉल्यूशन पूरे के पूरे किसी भी चीज़ से आप कलेक्ट करके कॉपी में मत प्रिंट आउट करिए, छापिए मत. मैथ्स बिल्कुल नहीं आएगी, मैथ्स खुद करने से, खुद सोचने से आती है. ऑल द बेस्ट.